52 ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆਪ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ, ਕਰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਔਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਸਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ, ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤੇ ਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ, ਸਮਾਲ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ, ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਾਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਰਦਾਰ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਧੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਪਚਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਈਰਖਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤਾਨ ਆ। ਕਰ ਕੋਠੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ। ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਵੇਗਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਕਈ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ? ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇਹ, ਨਾਨਕ ਰਾਹੋ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਕੀ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਕੀ, ਖੱਟ ਖਵਾਲਣ ਕਾਰ ਕਰੇ ਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰ ਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਸਮਝ ਸਨੇਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਤਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੇ ਹੀ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਸਾਲੇ ਪਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਸਾਲੇ ਪਾਇਆ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੋ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ
नहीं है। पाठ पूजा दा मसाला पाया ये हक दी नहीं बन चली। मारन पाहे हराम मह होए हलाल ना जाए। गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने मसाले पाया हराम दा कदे हलाल दा नहीं जे बनता। जिस दा हक मारिया ओदी बददुआ भी लगेगी। ये ना समझ भी पाठ पूजा नाले गुनाह कटिया जाएगा। दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब ने ते सीधा कह दिता भी मुरदार खावेगा लोक ते तेरा उजड़ेगा ही। परलोक विच भी धक्के ने तेरी मैं हामी नहीं भरांगा। ये हुण ध्यान असीं देना जिहड़े हक खाने लोकां दा। साफ बोल ने कहंदे हिंदुआं दे गुरु देवते, सिखां दे गुरु पातशाह, इस्लाम जगत दे मुरशद पीर अपने सेवकां दी हामी तां ही भरनगे अगर वो मुरदार नहीं खांदे। ते किसी भी धर्म चों है जे मुरदार खाना है, गैरां दा हक खाना है, तो कोई गुरु पीर लोक परलोक विच तेरी बांह नहीं फड़ेगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब ने मोहर लाई है। गुर पीर हामा तां भरै, गुर पीर हामा तां भरै, जां मुरदार ना खाए। हामी फिर भरनगे जे किसी दा हक नहीं खावेगा। ते फिर लोक परलोक विच तेरी रखिया करनगे। द स्पिरिचुअल गुरु स्टैंड्स बाय विद अस। उदों ही गुरु तेरे नाल खलोवेगा जदों असीं किसी दा हक नहीं खावांगे। ते जे किसी दा हक खावांगे रब दा वास्ता ही भुलेखा कढ़ दे भी गुरु हरकृष्ण तेरी बांह फड़ लवेगा, डुबदे नूं डुबण दवेगा। अगला बोल है पातशाह दा। दसवंध देना दे दसवंध गुरु के रूड़ा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे जिहड़ा मुशक्कतां घाल के कमाया है उहदे चों 10वां हिस्सा गुरु की गोलक लई कढना है। तुसीं देखो गुरु महाराज ने मुशक्कत घालण तो, सुख सहूलतां धन दौलत इकट्ठी करन तो नहीं रुकिया। साफ कहा है उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पुंज। उद्यम कर, मुशक्कतां घाल, कमाई कर, माया इकट्ठी कर लै, जीवन का गुजारा चंगा चले तेरा। पर एक खूह है, पानी खलोता ही रवे ते मुश्क मार जाता है। उहदे चों वरतीदा रवे ते प्रफुल्लत रहिंदा है। हुण माया इकट्ठी करनी सी, वस्तुआं इकट्ठियां करनियां सी, जीवन का गुजारा चलता रवे। पर कई बार की हुंदा वस्तुआं च ही खचत हो जाने, देण वाला गुरु नानक भुल जांदा। मुश्किल उदों खड़ी हुंदी है। जाना मंजिल ते सी, साधन दे नाल ही मोह पा लईए ते गल नहीं चलेगी। ट्रेन लैनी अमृतसर दी, मंजिल अमृतसर है, ट्रेन विचों ही ना उठो, ये गल नहीं चलेगी। असीं माया नाल मोह पा लिया, मंजिल विसार दित्ती, मुश्किल इत्थे है। माया ते उसने बनाई साडी वरतों लई सी। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह कहंदे भी वेखो नेक कमाई विचों 10वां हिस्सा गुरु की गोलक विच पाउणा है। ਉਹ गुरु की गोलक जिहड़ी लोड़वंदां दे काम आउंदी है। वेखो कोई गरीब है, तन ते कपड़ा नहीं, गरीब दे तन नूं कपड़ा लै देना, तन ढक देना। एक अपाहज है, वो कमाई नहीं कर सकदा, उसदियां आंदरां तपियां ने, भुख दे सहत है, ਉਹਦੇ मूँह नूं कोई बुरकी ला देनी। ये अपने 10वें हिस्से चों करना है। कोई हालातां दा मारिया रबी आफत आ गई, हड़ आ गए, किते काल पै गया, किसी दी फसल नूं अग लग गई, ऐसे लोड़वंदां दी मदद करनी। आपां कई बार कह दिंदे ना गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक है। गुरु दे दर लई दसवंध कढना। और वेखो गुरुद्वारा बंगला साहिब बैठे हो, हरमंदर साहिब जांदे हो, हज़ारां गुरु घर ने। गुरु की गोलक विच जिहड़ा तुसीं 10वां हिस्सा अपना पाउंदे हो, उहदे नाल लखां लोड़वंद लोग लंगर छकदे ने, भोजन छकदे ने। और सिख जगत की ये वडियाई है भी किते भी कोई रबी आफत आवे, किते हड़ आउण, किते भूकंप आवे, हालात बदतर हो जाण, किते बदल फट जावे, किते लड़ाई लगी होवे, ते गुरु के सिख अपने दसवंध चों भोजन वस्त्र पदार्थ लैके उस जगह पहुँच के सेवा कर आउंदे ने। गुरु नानक निरंकारी दियां खुशियां प्राप्त कर लैंदे ने। हुण तेरे दसवंध कढण नाल एक खुशहाल
समाज की सिरजना हो सकती है। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ने कमा नहीं सकते उन्हां दीयां लोड़ां दी पूर्ति भी हो सकती है। दसवंध कढ़ना इसलिए जरूरी है। हुण करदे की है, जे 10 वस्तुआं दित्तियां ते लखां ने, मन लो 10 वस्तुआं सानू उसने दित्तियां ने, विचों एक वस्तु लोड़वंद लई असीं कढ़नी है, कोई घाटा नहीं पैन लगा, 9 भी उसने ही दित्तियां ने। हुण मुश्किल यह है भी जिस करतार ने 10 वस्तुआं सानू दित्तियां सी उहदे निमित्त असीं एक भी कढ़ण लई तैयार नहीं। लोड़वंदां लई एक भी वस्तु असीं कढ़ण लई तैयार नहीं। ते मन लो 9 चों एक ही जानी सी ना, 10वां ही जाना सी ना, 9 कोल रह गईयां, 10वां हिस्सा चलिया गया। देण वाला 10 दियां 10 वस्तुआं वो सी ते मन लवो 10 ही खो लवे तो फिर उहदा की बिगाड़ लोगे। साफ जय बोल ने 10 वस्तु ले पाशै पावै, 10 वस्तु ले पाशै पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक भी ना दे 10 भी फिर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे, फिर की करेगा कहते। सो दसवंध कढ़ना जरूरी है। साफ किया पातशाह ने, जो बाबे के दाम ना दे हैं तिनको गह बाबर के ले है। याद रखियो भाई मक्खण शाह लुबाणे दा जहाज डुबदा सी, दसवंध वाला तर जांदा है ते बाबा मक्खण शाह तरला लैंदा नानक निरंकारी नूं चेते करके आखण लगा, 10वां हिस्सा लोड़वंदां लई है, गुरु की गोलक लई है, ते कृपा कर जहाज बन्ने ला दे। ते इतिहास गवाह है गुरु तेग बहादुर साहब ने मोढा ला के जहाज बन्ने लाया सी, दसवंध कढ़न वाले नूं डुबणों बचा लैंदा है। बाणी दा फरमान है, कित मुख गुर सालाही है, करण कारण समरथ, गुरु जो चाहे कर सकदा है, डुबदियां नूं बन्ने ला दिंदा है। खजाने भरपूर रहे बाबा मक्खण शाह लुबाणे दे, दसवंध कढ़दा सी और लोड़वंदां दे ही काम आउणा है। कई कह दिंदे जी गुरु की गोलक प्रबंध खा जाते ने। याद रखियो तू अपनी किरत चों दसवंध कढ़िया है, लोड़वंदां लई कढ़िया है। जेड़ा गोलक दी दुरवरतों करेगा उन्हों बाबा नानक सांभेगा। तेरा फर्ज अपनी कमाई चों दसवंध कढ़ना है। गरीब गुरबे दा तन ढकना है, भोजन नाल आंदरां ढकणियां ने। याद रखियो करनी दा हिसाब गुरु नानक ने करना है, ते जेदी मंदी करनी होई ओदे तो दूर होवेगा 84 दे गेड़ विच। जेदी चंगी करनी होई नानक निरंकारी ओनू सीने ना ला लवेगा। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कोई नेड़े है करतूत बिगड़ गई दूर, कर्म चंगा सी ते नेड़े है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे दसवंध कढ़िया कर। फिर ध्यान दिओ खूह चो जल वरतदे रहो ते मुकदा नहीं है, प्रफुल्लित रहिंदा है, खुशबूइयां आउंदियां ने, स्वच्छ रहिंदा है। पानी कढ़ना छड्ड दिओ ते पास मारन लग जांदा है। ये जमा ही रह जांदे हुंदे कई बार बैंक विच ते बापू मंजे ते पिया रह जांदा हुंदा है। गुरु दा फरमान है दसवंध कढ़िया कर, लोड़वंद दी मदद करिया कर। तीसरा उपदेश दीन दुनिया दे मालक करदे ने, कंठ करनी गुरबाणी। गुरबाणी नूं कंठ करना है। वेखो एक धनाड़ बंदा विदेश चलिया जावे, रहन वसेबे लई होटल दे अगे खलोता है, रिसैप्शन ते चलिया जांदा है ते जाके उत्थे ये गल आखे भी मैं करोड़ांपति, मैं अरबांपति, मेरे बैंक खाते भरे हुए ने ते मैनू रात रहन लई एक कमरा दे दिओ। ते ओ जिहड़े नौकर चाकर ने होटल चलाउण वाले वो आखणगे भाई जे रात कटनी है ते जेब ढिली कर, दस तेरे कोल किन्ने पैसे ने। सानू नहीं लेखा जोखा तेरे बैंक खातियां दा, ना कोई लैना देना। तू करोड़ांपति है, तू लखपति है कि कखपति है, जेब विच की है वो गल कर तू। माया उही काम आउंदी है जिहड़ी कोल है। बैंकां बूंकां वाली दा ते कई बार पता ही नहीं चलदा, उत्थे ही रह जांदी है। सियाणियां ने एक कहावत बनाई उथे, कहंदे माया उही अपनी है जिहड़ी कोल है, जिहड़ी दबी हुई है उहदा की पता उहदा हकदार कौन बनेगा।
इस गल का ख्याल रखियो, पैसे उही अपने ने जिहड़े मौके ते कम आ गए, जिहड़े जेब विच ने। और विद्वान पुरुषां ने कहावत बना दी, सियाणियां ने कहंदे पैसा गंठ ते बाणी कंठ। जिहड़ा गंढ विच है, जिहड़ा कोल है, जिहड़ा हथ विच है, उही पैसा सबला है। बाणी जिहड़ी कंठ है ना, वो हर वेले सिख दे कम आउण वाली है। इस गल का ख्याल रखियो। ठीक है, तू गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह का पाठ कर सकता है, 18 10 20 पाठ कर लेना है, शुद्ध पाठ कर लेना है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं हर जगह ते तू नाल लिजा नहीं सकदा। मन लो कोई बंदा जॉब ते है, वैसे तो वेखो बाणी सहज नाल पढ़नी, किरत करना एक वखरा विशा है, किरत करदिआं रब नूं चेते रखना ये वखरा विशा है। पर साडे लई नितनेम जरूरी है। दिन दी आरंभता अमृत वेले उठ के नितनेम तो करनी पवेगी। अगले बचनां विच गुरु गोबिंद सिंह भी हुक्म करनगे, अमृत वेला जरूरी है, अगे बचन आवेगा। मन लो देवनेत कोई ऐसी हो जावे भी बंदा सबर विच सी, नितनेम दा टाइम हो गया, इशनान करन नूं पानी नहीं है, ते गंदे मंदे हत्थां नाल हुण ना ते गुड़का साहिब ही फड़ सकदा है, और रब करे सबर दे विच तुहाडे कोल गुड़का साहिब ही नहीं है, ते तुहाडा जीवन काल दा नेम अज टुट जावेगा। ते जे बाणी होई कंठ, जपजी जाप सवैये चौपी नंद होया कंठ, ते तुहाडा नेम नहीं टुटेगा। तन भावें स्वश नहीं सी, मन तुहाडा स्वश ही रहेगा, क्योंकि बाणी पढ़ लई है तुसीं। बाणी दी शोभा बड़ी है, ते जिहड़ी श्वासां दे धागे विच परोई गई तुहानूं जिहड़ी कंठ है, वो हर समय तुहाडा मार्ग दर्शन करेगी, हर समय तुहाडे कारे आवेगी, तुहाडा जीवन सौर जावेगा। याद रखियो, दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह कहंदे कंठ करनी है गुरबाणी। कोई ड्यूटी ते है, कोई जॉब ते है, कोई सबर विच है, कंठ बाणी जिसनूं याद है, गलूए मुबारक विच श्वासां विच जिस दे बाणी समाई है, जो कंठ दा हार है बाणी, वो हर समय तुहाडे कारे आ सकदी है, कम आ सकदी है। नाले साफ किया, कहंदे हीरे जवाहरातां दे हार पाया ते रब गले नहीं मिलदा, पर जे श्वासां दी माला विच प्रभु दा नाम होवे, कंठ विच बाणी दा हार होवे, ते जरूर गल नाल लग जांदा है। अन दिन नानक नाम ते आए, ध्यान दिओ। दिन रात जेड़े श्वासां अंदर परमात्मा दी कीर्ति दे मणके परोई बैठे ने, बाणी परोई बैठे ने, अन दिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता। दिन रात जिन्ना नाम ते आया, जिन्ना बाणी कंठ कर लई, अपने दास कहो कंठ लाए राखै ज्यों बारक पित। माता उन्होंने गले ला लिया, जिन्हों ने बाणी नूं गले लाया, गुरु नानक निरंकारी काल पुरख ने उन्होंने गले ला लिया। जिन्हें बाणी नूं श्वासां दे धागे विच परो लिया, कंठ विच वसा लिया, दिन रात जपिया, उन्होंने गुरु नानक सीने नाल ला लैंदा है। कहंदे जिन्हां दी कंठी माला है ना, बाणी दी माला है, जिन्हां दे गले ते गुरु नानक निरंकारी दे बचना दी जंजीर है, उन्हां नूं जमां दी जंजीर पो नहीं सकदी, उन्हां नूं दुखां दी जंजीर जकड़ नहीं सकदी। कंठ रमणीय राम राम माला हस्त ऊच प्रेम धरणी। जिन्हां दे कंठ विच नाम दी माला है, जिही बण जो उत्तम श्लोक उदरणं नयन नंदनी, बाणी दे फरमान है, तेरा उधार हो जावेगा। बाणी दी माला बना लै, श्वासां दे धागे विच बाणी परो लै, तेरा उधार हो जावेगा, जन्म मरण कटिया जावेगा, तेरे हर समय कारे आ जावेगी बाणी जेड़ी कंठ है। इस करके वध तो वध बाणी कंठ करनी है, याद रखनी है, और हर समय पढ़दियां रहना है, ये जतन चाहिदा है। चौथा हुक्म गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा है, जागना अमृत वेले नहं सपुतं सिख सोत सवेरे। कहते नह सपुत है सिख सोत सवेरे, इत्थे अमृत वेले दा उपदेश है। बाणी कंठ करनी है, पढ़नी कदों है, हुण ध्यान दो।
इंसान दी दुनिया दे उत्ते फितरत ऐसी है, ये दलिद्र विच जकड़िया रहिंदा है, उदम तो दूर दौड़दा है। गुरु पातशाह कहंदे उदम कर, उदम करके जाग सकते हैं, नहीं तो रजाई नहीं खैड़ा छड्डदी, दलिद्र नहीं खैड़ा छड्डदा। मन मारना पैंदा, उदम करना पैंदा अमृत वेले उठण दे लई। वाहिगुरू जी की कृपा नाल 84 दे गेड़ तो बाद भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया अपार कृपा हुई, मनुखा जामा मिलिया। और इस मनुखे जामे अंदर साडा सर्वोत्तम लक्ष्य है मोक्ष मुक्ति। 84 दा गेड़ सदा लई कटिया जावे, गोबिंद मिलन की यह तेरी वरिया। नानक निरंकारी काल पुरख दे चरणां विच जगह मिल जावे, 84 दा गेड़ मुक जावे। महाराज कहंदे ने जे मोक्ष प्राप्त करना चाहना है ते अमृत वेले तो ही प्रभात तो ही ओहदा नाम जपना शुरू कर दे, ओहदे तरले लिया कर, ओनू याद करया कर, फिर तैनू वो अपने चरणां विच वासा दे दवेगा। जिहदे नाल प्रेम होवे ना वो आण के मिल ही पैंदा है, वो हिरदे विच जगह दे ही दिंदा है। ते जदों प्रेम ही नहीं, जदों गाउंदे ही नहीं, जदों याद ही नहीं करदे ते सानू वो जगह कित्थे दवेगा दसो। महाराज कहंदे अमृत वेले उठ। गुरु ग्रंथ साहिब दे पाक बोल ने, नाओ प्रभाता शब्द ध्याइया। ये ठीक है, अमृत वेला सच नाओ। जदों भी तुसी गुरबाणी पढ़ोगे हर वो वेला अमृत हो जाएगा। पर कई बार इस पंक्ति दे अर्थ करदियां मनमतिया बंदा इधर नूं चल पैंदा भी भावें कोई भी वेला है बाणी पढ़ो, जदों अमृत हो जाना तो फिर 3-4 बजे अलार्म ला के उठण दी की लोड़ है। ध्यान दें, ये ठीक है, हर वो वेला अमृत है जदों बाणी पढ़ेगा। अमृत वेला सच ना उड़ियाई विचार। पर प्रभात दा खास जिक्र है, नाओ प्रभाता है, प्रभात तड़के नूं क्या नाओ प्रभाता शब्द ध्याइया, छोड़ो दुनी प्रीता। औखा है दुनिया दी प्रीति छड्ड के प्रभात वेले उठना, अमृत वेले उठना। पर कहंदे करना पवेगा। प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। जेड़ा दुनिया दी प्रीति छड्ड के अमृत वेले नानक निरंकारी दी प्रीति करेगा, जग हारिया तिन जीता। दुनिया हार गई, मनुखा जामा व्यर्थ गया, ते ओ गुरमुख जित गया जामे नूं जिन्हें अमृत वेला सांभ लिया। एडी महिमा है, ये सिक्खी दा नेम है, साफ लिखिया है सिक्खी दा नेम गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। उठ इशनान करहो प्रभाते सोए हर आराधे। अमृत वेले उठ, प्रभाते उठ, इशनान कर ते फिर गुरु नानक निरंकारी नूं चेते कर। नानक निरंकारी दे गुण का राइज इन द अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग। तड़के दे उठ, प्रभाते उठ, अमृत वेले उठ, गुरु नानक निरंकारी नूं चेते कर। कहंदे जीवन विच भावें तेरे किन्ने भी विघन होए, बिखड़े दाओ लंघाए मेरा सतगुर। अमृत वेले उठण वालियां दा जीवन कैसा है, किवें जीवन उन्हां दा गुजरदा है। कहंदे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती कर जाते। उन्हां दे जीवन चों विघन कटे गए, दुख कटे गए, बिखड़े पैड़े सुखाले कर दिते जिन्हां ने प्रभाते उठ के इशनान करके अमृत वेला सांभिया, बाणी पढ़ी है। ठीक है, हर वेले नूं ही अमृत बना, पर शुरू प्रभात तो कर, शुरू तड़के तो कर। अमृत वेले उठण वालियां दे बिखड़े पैंडे भी सुखाले कर दिंदे ने गुरु पातशाह। फरीद जी ने तो सीधा कह दिता, साधा नूं किसी का डर नहीं हुंदा। हजे अपने वर्गे अर्थ करन लगे झक जांदे ने, बाणी ते सीधी चोट करदी है। बाबा फरीद ते सीधा ही चल पए। वो महापुरुष कहंदे भी जेड़ा अमृत वेले उठिया नहीं वो ते जींदा ही मोया होया है। उन्होंने मुर्दा कहा, फरीदा पिछल रात ना जागे ओहे, जीवंदड़ो मोयो है। कहंदे जेड़े जागे नहीं, जिन्हां अमृत वेला सांभिया ही नहीं, वो जिउंदे ही मोए होए ने, उन्हां दा जीवन व्यर्थ है। जे तै रब विसारिया ता रब ना विसरियो। याद रखियो
गुरु ग्रंथ साहिब विच सिख दी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी है। जदों तुसीं रोज पढ़दे हो ना, गुर सतगुर काजो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृत शरण आवे, फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावे, बहदियां उठदियां हर नाम ते आवे। सिख दी डेफिनेशन है तड़के उठना पवेगा, प्रभाते नाम ते आउणा पवेगा, हर श्वास नाल जपना पवेगा, ते उहदे तो बाद उठदियां बहदियां हर नाम ते आवे। ये सिख दी डेफिनेशन है। ये 52 हुक्म ही जदों ध्यान नाल पढ़ोगे समझ आवेगी भी इन्हां दी जड़ गुरु ग्रंथ साहिब विच है। हर हुक्म दे परथाए बोल तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच मिल पैणगे। जिहड़ा 5वां वचन है, दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने, सेवा रुच नाल सिख सेवक दी करनी। देखो, मानवता दी सेवा सफली है, मनुखता दी सेवा सफली है, लोड़वंद दी सेवा सफली है, ते सिख सेवक दी कीती हुई सेवा दा आम नालों भी वधेरे फल है। ध्यान रखियो इस गल दा। सिख कौन है? सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने विच आवे। सेवक कौन है? ठाकुर का सेवक आग्याकारी। महाराज कहते सेवा रुच नाल सिख सेवक दी करनी। साधुआं सतपुरुषां दी जेड़े सेवा नहीं ना करते, सिख सेवकां दी, गुरु दे हुक्म विच चलण वालियां दी जेड़े सेवा नहीं करते, कबीर जी ने बड़ा कठोर बचन कहा है। कबीर जां घर साधना सेवी है हर की सेवा, नाहे ते कर मरहट सारखे भूत बस है तिन माहे। कहंदे जिथे साधु सतपुरुष दी लोड़वंद दी गरीब गुरबे दी तू सेवा नहीं ना करदा, वो घर नहीं है। जिथे सतपुरुष दी सेवा नहीं है वो ते कहंदे कब्रस्तान है, ਉਹਦੇ भूत खाना है। वो बंदा थोड़ा है जिहड़ा सतपुरुष दी सेवा ना करे, ਉਹਦੇ कहंदे भूत है। ये कबीर जी दे बोल ने। और नाल ध्यान दिओ, कहंदे रुचि नाल सेवा करनी है, प्रीति नाल सेवा करनी है, मदा चटी दी सेवा नहीं करनी, विखावे लई सेवा नहीं करनी, गलों लाउण लई सेवा नहीं करनी, प्रीति नाल, प्रेम नाल, भावना दे नाल सेवा करनी है। दीन दुनिया दे मालक गुरु साहब कहंदे है, जदों कोई सिख सेवक होवे ते उहनूं गुरु दा ही रूप समझ के उसदी सेवा करनी है। साफ कहा, कहंदे सिंह सो रहत पंच जिहे मिले मम स्वरूप तह जानो भले। जिथे पंज सिंह मिल सेवा करो, मेरा ही स्वरूप समझ के सेवा करो उन्हां दी। जिथे गुरु का सिख मिले उहदी सेवा करो। मानवता दी सेवा दी महिमा है, गुरु के सिख दी सेवा दा महात्म होर वध जांदा है। सबना दी लोड़वंदां दी, दीन दुखियां दी सेवा करो, सिख सेवकां दी सेवा करो, जीवन सफला हो जाएगा। इउं महाराज सच्चे पातशाह कहंदे, जो सिख सेवक नूं अर्पण करोगे वो साडे तक ही पहुंच जाता है। पातशाह कहंदे ने, वैसे भी बाणी दा फरमान है, सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। प्रभु मिलदा ही उन्हां नूं है जिहड़े सेवा करदे ने, रुचि नाल सेवा करदे ने। गुरु नूं सेवकां दी कीती सेवा बड़ी भाउंदी है। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। उन्हां नूं इह सेवा करनी भाउंदी है। खैर, अगे दीन दुनिया दे मालक 6वां उपदेश करदे ने, अर्थ गुरबाणी दे पढ़ने गुरु घर दे विद्वान सिखां पासों। गुरबाणी दे अर्थ पढ़ने ने। इस गल दा ख्याल रखियो, गुरु घर आके गुरबाणी पहला प्रीति नाल सुननी है। बाणी गुरु घर आके प्रेम नाल सुननी है। जो सुनोगे वही पढ़ोगे ना, फिर पढ़नी है। गुरमुखां प्यारियां पासों संथ्या लैके बाणी दा शुद्ध उच्चारण सीखना है ते बाणी पढ़नी है। किसी आम इंसान दा भी पुठा ना लो ते उहनूं चंगा नहीं लगदा। हुण तुसीं किसी दा भी नाम पुठा लै लो, उहनूं भाउंदा नहीं है। ये गुरु के अंग ने, गुरु के बोल ने। जदों लगा मात्रा गलत करदे हो ते की गुरु नूं भाउंदा होवेगा? ते जे तुहाडा कोई पुठा ना लवे, तुहानूं चंगा लगदा है ते फिर ते मन लवो। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह कहंदे, गुरबाणी शुद्ध पढ़नी है, अर्थां सहित पढ़नी है। ध्यान दिओ, गुरु घर आके बाणी सुनी। गुरमुख प्यारे गुरु के वजीरां ग्रंथी सिंघां पासों, ज्ञानियां पासों गुरबाणी दे
अर्थ पढ़ने ने, संथਿਆ ਲੈਣੀ है, शुद्धता नाल पढ़ना सीखना है। ते जेड़ा बाणी नूं सुन के पढ़दा है, गुरमुखां प्यारियां दे पासों अर्थ बोध हासिल करदा है, गुरबाणी दे अर्थ समझ के जीवन गुरबाणी अनुसार ढाल लैंदा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने, जन नानक बोलै ब्रह्म विचार, जो सुनै कमावै सो उतरै पार। जेड़ा बाणी नूं सुनेगा, बाणी दे अर्थ समझेगा, अर्थानुसार जीवन नूं ढालेगा, सो उतरै पार। वो 84 दे गेड़ तो पार हो जाएगा। ही इज कैरिड अक्रॉस दिस वर्ल्ड, दुनिया तो पार हो जाएगा, उहदा पार उतारा हो जाएगा। सो ध्यान दिओ, कहंदे जन्म ना मरै ना आवे ना जाए, जन्म ना मरै ना आवे ना जाए, हर छेती ओ रहै समाए। कौन जी जन नानक बोलै ब्रह्म विचार, जो सुनै कमावै सो उतरै पार। जेड़ा बाणी नूं सुणदा है, शुद्धता नाल पढ़दा है, उहदे अनुसार जीवन नूं ढालदा है, उहदा 84 दा गेड़ मुक जांदा है। ही रिमेन्स ब्लेंडेड विद द लॉर्ड, वो परमात्मा विच अभेदता हासिल कर लैंदा है। और विशेष करके हदायत कीती भी गुरबाणी दे अर्थ गुरु घर दे विद्वान शरधावान सिखां पासों पढ़ने ने। मनमतीए बंदे कोलों अर्थ पढ़ोगे, जेड़ा गुरु नानक निरंकारी नूं, दसो पातशाहियां नूं, अकाल पुरख दा स्वरूप नहीं समझदा, वो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे अर्थ एक दुनियावी किताब दे अर्थां वांगू ही करन लग पवेगा। ये ब्रह्म दे बोल ने, खुदा दे बोल ने, अगम्मी बोल ने। महाराज कहंदे ने, अनहद बाणी गुरमुख जानी बिरलो को अर्थावै। ये गुरमुखां नूं ही असल बाणी दे अर्थां दा बोध है। किवें हासिल होया? गुरु वल मुख करके, गुरु की किरपा दे सदका। ते जेड़े गुरमुख जन ने बिरलो को अर्थावे, वो विरले हुंदे ने जेड़े असल दे अर्थ गुरु की बख्शी सोझी अनुसार करदे ने। सो गुरमुख, गुरमतिया, गुरसिख, गुरु दे हुक्म अनुसार जीवन बतीत करन वाले सतपुरुष कोलों ही गुरबाणी दे अर्थ सिखने ने। मनमतिया अर्थां दा अनर्थ करेगा, आप डुबिया है तुहानूं भी डोब देवेगा। भावना वाले कोलों अर्थ पढ़ने ने। अगे महाराज कहंदे ने, गुरु पातशाह ने अगे बोल कहे ने, रहत पंजां ककारां दी दृढ़ रखनी है। ये 7वां हुक्म है। ਇਹਦਾ 6ਵੇਂ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਬੋਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ पेड़ की जड़ धरती विच होवे ना, पहला बीज धरती विच हुंदा है, फिर ही प्रफुल्लित हुंदा है। अंदर बाणी है तो बाहर बाणा ते ककार प्रफुल्लित हो जाणगे। अंदर बाणी नहीं तो बाणा भी नहीं पाउंदा। ते जे बिना बाणी तो बाणा है तो जेड़े पेड़ की जड़ ना होवे, आ नकली तुसीं पेड़ वेखे ना जेड़े रात नूं सड़कां ते सजाए हुंदे फुल बूटे जे ला के नकली, जेड़े पेड़ की जड़ ही नहीं है, नकली है, उत्ते ही एडजस्ट कर दिंदे ने धरती ते, फुल झड़ियां जिहियां ला दिंदे ने। जेड़े पेड़ की जड़ नहीं, ना वो फल ही दे सकदा है, ना फुल ही दे सकदा, ना खुशबोई दे सकदा। जे बाणी नहीं ते बाणा शोभनीक नहीं है, ते जे बाणा है बाणी नहीं, ये शोभा नहीं पावेगा। ते जे बाणी है बाणा नहीं, ते गल फिर भी नहीं बननी। जे बीज हुंदा ते रुख जरूर पैदा हुंदा। जे तेरे कोल बाणा नहीं, मतलब साफ है, तेरे कोल बाणी भी है नहीं है। ये 5 ककार नहीं, तेरे कोल बाणी भी है नहीं है। दावे तू करी जाना मेरा मन साफ है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे 5 ककारां दी रहत दृढ़ करनी है। सानू 5 ककारां दी रहत दृढ़ कराई और कह दिता, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा, ना ही रहत बड़ी जरूरी है। जो रहत नहीं ना रखदा वो गुरु नू प्यारा नहीं है। तुसी रोज पढ़दे हो, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत। कहंदे देख,
तेरा सुभाव कुछ ऐसा है, धर्म दे बाहरले चिन्ह तू बाणा ते पा लिया, धर्म दे बाहरले चिन्ह ते तू धारण कर ले, पर तेरी अमली जिंदगी धर्म दे अनुसार नहीं सी। बाहर ते रुख है पर जड़ कोई नहीं है, दा मतलब बनौटी रुख ही होवेगा। महाराज आखन लगे मन नहीं प्रीत मुखो गंढ, मन अंदर प्रीति नहीं है, अंदर बाणी नहीं है, केवल उतों उतों गल्लां करदा है, ड्रामे करदा है, धार्मिक होण ते बाणा ही पाया है। कहंदे लोग ठगे जा सकदे ने बाणे नाल, तुसीं वेखियो कागज दा फुੱਲ होवे ते असल खुशबोईदार कोई गुलाब दा फुੱਲ होवे ते दूरों तकोगे असीं ठगी खा जाने आ। कई बार सानू बनौटी दी चमक वेख के इउं लगदा ये असली है ते दूजा नकली है, दूरी ते पिया होवे। असीं चम वेने आ, असीं अंदर नहीं वेंदे, साडी झात अंदर ताई नहीं है। गुरु साहब कहंदे जे निरे ही ककार ने तेरे कोल बाणी है नहीं, बाणा है बाणी है नहीं, जड़ है नहीं। दीन दुनिया दे मालक कहंदे जान हार जानन हार प्रभु प्रवीण, बाहर पेख ना कतहूं पीन। वो अंदर दी जानदा है, वो चम नहीं, वो मन वेंदा है। बाहरले भेख ते कदे भी वो रीझदा नहीं है। ही इज नॉट डिस्प्रेस्ड बाय द आउटवर्ड डिस्प्ले, कदे भी इंप्रेस नहीं होवेगा, कदे भी प्रभावित नहीं होवेगा। ही इज नॉट इंप्रेस्ड बाय द आउटवर्ड डिस्प्ले। ये बारी विखाविਆਂ नाल लोग ठगे जांदे ने, नानक निरंकारी नहीं ठगिया जांदा। भी तू बाणा पाया है, लोग समझण बड़ा नितनेमी होवेगा ते बाबा 9 बजे तक सुता ना उठदा होवे। लोग ठगे जा सकते ने, गुरु नानक नहीं। महाराज कहंदे पंजां ककारां दी रहत रखनी है। मन लवो कंगा डिग पवे, कड़ा डिग पवे, अरदास करके जपजी साहब करके भुल बख्शा लैनी है। मन लवो इशनान करदियां कशहरे दा पहुंचा लै जावे, जाने अणजाने विच गुनाह हो जावे। ग्रंथी सिंह नूं बेनती करो, अरदास करवाओ, जपजी दा पाठ करवाओ ते भुल बख्शा लवो, बज्जर कुरैत हो जावे। बज्जर कुरैतां बाबत तुसीं जाणदे हो, समा नहीं विस्तार करां, कदे रहतनामे पढ़ लिओ, याद रखियो बज्जर कुरैत हो जावे। पंजां प्यारियां दे पेश होके हथ जोड़ के सिनेमर होके बेनती करनी है और तरला लेना है। ऐ गुरु गोबिंद सिंह दे प्यारे सिखो, टूटी गांडन हार गोपाल बज्जर कुरैत हो गई है। गुरु टुटियां गंढन वाला है, मेरे लिए अरदास करो। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह अगे बज्जर कुरैत हुई है, केस कतल करवा लैने, होर कोई कुकर्म हो जाना। अरदास करो मेरे बाबत, मैनू पातशाह बख्श देण, सेवा करके भुल बख्शाउणी, टुटी अपनी गंढा लैनी। जो भी सेवा सजा पंज प्यारे लाउण ओ करके बख्शा लैनी। महाराज दा सुभाਅ है, वो बख्श दिंदे हन। गुरु दे हुक्म विच चलना, गुर कहया साकार, कमावो गुर की करनी का है तावो। गुरु दा हुक्म है, पंज ककार सदा पास रखने ने, पंजां ककारां दी रहत दृढ़ रखनी है। ये 7वां हुक्म है दीन दुनिया दे मालक दा। और जदों गुरु दा हुक्म हो जावे फिर इहदे विच किंतु परंतु की भी। किरपान क्यों पहननी है, कंघा क्यों, कशहरा क्यों, किरपान कच कड़ा, किरपान कंघा केश, ये 5 ककार ने। इन्हां दी रहत नूं दृढ़ रखना है। इत्थे ही दास विचार नूं संकोचदा है जी, भुल चुक दी खिमा। विचार करदियां बेअंत त्रुटियां रह जांदियां ने। गज वज के फतेह बुलाओ, गुरु पातशाह बख्श देण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।